Ajay Devgan matured as an actor with every new film of his, from doing action films to romances and then moving on to comedy. This guy excelled in every role. Pyar To Hona Hi Tha के बाद he once again proved his mettle in Mahesh Bhatt's critically acclaimed Zakham. This film was set against the backdrop of the 1992 Mumbai riots. फिल्म में अजय ने एक बहुत ही रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस दिया और बहुत लोगों का मानना है कि ये उनकी करियर की तब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। जख्म के लिए उन्हें सम्मानित किया गया विद द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। जख्म से अजय के करियर में एक बदलाव आया, अ चेंज फॉर द बेटर। अब उनको बिग डायरेक्टर्स अप्रोच करने लगे, बट दिस वाज़न्ट द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड टू दिस एक्टर अराउंड दिस टाइम। After 5 years of courtship and a whirlwind romance, Ajay and Kajol finally tied the knot. इनकी शादी एक हश हश अफेयर थी। At this time, Ajay took a break and toured most of Europe and Central America with his wife. शादी के बाद अजय की फर्स्ट रिलीज थी दिल क्या करे। फिल्म में उनकी रियल लाइफ स्पाउस काजोल भी थी, but another actress महिमा चौधरी played his on-screen wife. काजोल और अजय का एक ऑफ-बीट रिलेशनशिप दिखाया गया। These two newlyweds could not recreate the same magic as in some of their earlier films. दिल क्या करे flopped, but the actor bounced back with Milan Luthia's कच्चे धागे and Sanjay Leela Bansali's magnum opus हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम में अजय को यूज किया गया as a surprise package, and this gimmick worked wonders for the film. Experience helps. Your fire to do something different helps. Having won hearts and recognition as an actor, Ajay ने अपना ध्यान बढ़ाया फिल्म प्रोडक्शन की ओर. He left no stone unturned in making his maiden venture, Raju Chacha. The sets were grand and the production was large scale. And 2000 में रिलीज होने वाली ये फिल्म उस दौर की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी. लेकिन सैडली ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इस अजय काजोल स्टारर को नापसंद किया, मेकिंग इट द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस फेलियर ऑफ इट्स टाइम. Financial setback से उभरने के लिए Ajay worked harder in his forthcoming films. He featured in critically acclaimed films like Rajkumar Santoshi's Lajja and Ram Gopal Verma's Company. काम करेगा मेरे लिए? उसी के लिए तो आया हूँ. कितना मांगता है? आप बोला है ना, आप बोलो. 10 तेरे को और 5 तेरे साथियों को. बहुत कम फिल्में होती हैं जिसमें क्रिटिकल एक्लेम भी मिलता है, क्रिटिक्स भी पसंद करते हैं, ऑडियंस भी पसंद करती है और बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन होती है. जब ऐसा होता है तो फिर यू फील वेरी गुड. कहते हैं कि कंपनी में अजय का किरदार एक रियल लाइफ गून के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था. मौत से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता. Ajay Devgan is one of the few actors who has never resorted to changing his looks or image in real life. लेकिन इस बार he did just that. इस critically acclaimed film में the actor was seen experimenting not just with his role but also with his looks. From playing a character wanted by law, Ajay went on to play a character wanted by the British in Rajkumar Santoshi's The Legend of Bhagat Singh. Word of mouth publicity helped the film slowly pick up business and also win critical acclaim. इस फिल्म के लिए अजय को मिला his second national award, along with the Critics' Choice Award in the Filmfare Best Actor category. अजय के stupendous success के पीछे एक वजह यह भी थी कि उन्होंने कभी अपने ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन इमेज चेंज करने की कोशिश नहीं की. वो हर फिल्म के साथ इवॉल्व होते गए और हर किरदार में effortlessly blend होते गए. And this became more evident in films like दीवानगी, भूत and कयामत. अनीस बाज़मी की फिल्म दीवानगी के लिए इन्हें Filmfare Best Villain कैटेगरी में अवार्ड भी मिला. ये अजय के करियर का सबसे अच्छा फेज बताया जाता है, जहां न सिर्फ उनकी फिल्में हिट हो रही थी बल्कि उन्हें कई इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग रोल्स भी ऑफर हो रहे थे. Ajay's magic spell at the box office continued when he joined forces with Prakash Jha for Ganga Jal, which released in the year 2003. जहां गंगा जल में अजय ने एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर का किरदार निभाया, वहीं राजकुमार संतोषी की फिल्म खाकी में वो नजर आए एक नेगेटिव रोल में. लेकिन अजय की वर्सेटिलिटी यहीं तक सीमित नहीं थी. 2004 में he once again tried his hands at comedy and went on to do a light-hearted film मस्ती, जिसे डायरेक्ट किया इंद्र कुमार ने. इन कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों में काम करने के अलावा अजय ऑल्सो स्टार्ड इन मणिरत्नम्स क्रिटिकली अक्लेम्ड युवा, जहां इन्हें कास्ट किया गया ऑपोजिट द अडोरेबल स्टार किड ईशा दियोल.
the whole idea of surviving is to know your job, A for one, and when you're supposed to know your job, then it is not the genre. You know, अगर कोई आपको कहता है कि यार हाँ उस एक्टर को काम आता है अपना, तो फिर वो ये अगर वो एक ही जॉनर में काम आता है तो फिर उस एक्टर को काम नहीं, अकॉर्डिंग टू। युवा में अजय की परफॉर्मेंस की सबने तारीफ की, पर क्रिटिकल अक्लेम के साथ आए कंट्रोवर्सीज भी। कहा गया कि अजय didn't want his wife Kajol to work with Shah Rukh Khan, but this rumor was put to rest when Ajay himself went on to play a role in Kaal, a film that was co-produced by none other than Shah Rukh Khan. 2005 में अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ काल और अपहरण ही हिट हुए। अगले साल अजय बाउंस बैक विद yet another brilliant film, विशाल भारद्वाज's Omkara. The film didn't do very well commercially, but the critics were all praises for the performances of the film's lead actors. इस hard-hitting political drama के बाद अजय gave another noteworthy performance in Rohit Shetty's rip-tickling comedy Golmaal. This otherwise serious actor successfully managed to crack up the audience in this film. 2008 में this versatile actor added another feather to his cap. अजय देवगन turned director with the film You, Me और हम। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। कहते हैं कि this अजय देवगन काजोल स्टारर made money even before its release, क्योंकि रिलीज से पहले ही कुछ लीडिंग ब्रांड्स के साथ टाई अप करके अजय ने फिल्म का कॉस्ट रिकवर कर लिया था। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अजय was all this and much more. Contrary to his serious image, he is known to be a prankster on the sets, जो शूटिंग के दौरान अपने को-स्टार्स के साथ मस्ती भी करते हैं। I do a lot of masti. I mean, with people I'm comfortable with, I have a lot of fun in life, and that's, I think, very important also. So not that I'm a very, very, very serious person. यू, मी और हम के शूटिंग के टाइम पर अजय ने अपने को-स्टार सुमीत राघवन को फेक टेकीला शॉट्स देने के बजाय रियल टेकीला शॉट्स दे दिए थे। बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु इस एक्टर को नारद मुनि बुलाती हैं आफ्टर बीइंग अ विक्टिम टू हिज प्रैंक्स। अजय ने अपने इस हैप्पी गोला की नेचर को सिल्वर स्क्रीन पर बखूबी दर्शाया। फिल्म गोलमाल रिटर्न्स में गोलमाल रिटर्न्स वाज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन अजय देवगन्स डेब्यू फिल्म फूल और कांटे। इस एक्टर डायरेक्टर जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। I think he's good at everything, and he has improved by leaps and bounds in every film. And today he's very confident and he knows exactly what he wants to do, and I'm very happy about it. रोहित ने फिल्मों में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी एक अजय देवगन स्टारर से ही किया, 2003 की सुपरहिट फिल्म जमीन से। उसके बाद दोनों ने गोलमाल, संडे और गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। आफ्टर द सक्सेस ऑफ गोलमाल रिटर्न्स, दिस डुओ डिलीवर्ड येट अनदर हिट, ऑल द बेस्ट, जो 2009 में रिलीज हुई। दरिया में डूबू डूबे सूरज को निकालूं, घर की दीवारों पे सजा लूं, जो भी वो करता जाऊं, दिल करे, दिल की बातों में आऊं, दिल करे, दिल की मर्जी से जी लूं मैं। अजय इस फिल्म के लीड एक्टर ही नहीं, प्रोड्यूसर भी थे। एंड जस्ट लाइक बिफोर, दिस फिल्म टू वेंट ऑन टू बिकम अ बिग हिट। ऑल द बेस्ट में अजय के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे द डेडली दत्त, संजय दत्त। सुनने में आया कि संजू ऑल द बेस्ट की रिलीज डेट से खुश नहीं थे, क्योंकि उसी दिन उनकी एक और फिल्म ब्लू रिलीज हो रही थी। ब्लू sank without a trace, but all the best went on to become one of the highest grossing films of that year, with a whopping figure of approximately 41 crores, reaffirming Ajay Devgan's popularity as a star. मैं जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे, हाँ हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता दूं मैं तुझे। 2010 में this actor proved to be the most profitable actor in the Hindi film industry. उस साल अजय की 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 4 फिल्म सुपरहिट थीं। हर फिल्म में कुछ डिफरेंट ट्राई करना अजय के लिए एक चैलेंज बन गया था। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में अजय प्लेड द रोल ऑफ अ यंग दलित लीडर। इस फिल्म को मिला वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग्स। फिल्म के फर्स्ट वीक कलेक्शंस ही लगभग 54 करोड़ रुपए थे। 2010 में दिवाली के दिन रिलीज हुई सुपरहिट सीरीज गोलमाल की एक और सीक्वल, गोलमाल 3। इस फिल्म ने अजय की प्रीवियस फिल्म की रिकॉर्ड भी तोड़ दी। गोलमाल 3 ने फर्स्ट वीक में ही 62 करोड़ का बिजनेस किया। इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रिलीज के दरमियान एक और अजय देवगन स्टारर रिलीज हुई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें वो नजर आए सुल्तान मिर्जा के रोल में, अ गैंगस्टर विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड। कहते हैं कि अजय का किरदार एक मुंबई बेस्ड अंडरवर्ल्ड डॉन के लाइफ पर बेस्ड था। इस फिल्म के बिगेस्ट ड्रॉ थे द एक्टर हिमसेल्फ, एंड Ajay for sure did not disappoint. फिल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स जाने जाते हैं सिर्फ अपने लुक्स के लिए,
लेकिन अजय जाने जाते हैं अपने फिल्मों के क्रिटिकल और बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए. Ajay continues to maintain a balance between playing intense and light-hearted romantic roles. He also continues to enjoy the loyalty of his fans and filmmakers alike. And we shall continue to be loyal to you. Shine like a star.